تب صرف ایک دن سننے کو ملتا تھا یہ کلام. اور آموز کی پستک میں لکھا ہے, کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کلام یعنی کہ نہیں ملے گا, اٹھایا جائے گا. اور لوگ یعنی کہ اس وقت نہ روٹی کا کال ہوگا, نہ کھانے کا, نہ کپڑے کا, بلکہ اس چیز کا کال ہوگا, اس چیز کا کال ہوگا, کلام کا. تو آج ہمیں چاہیے کلام خدا کو سیکھنا. کلام کرنے سے پہلے چند باتیں ہیں جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بچوں کا ہم جو سنڈے اسکول کہہ سکتے ہیں یا بائبل کوچنگ کہہ سکتے ہیں, سٹارٹ کیا ہے, وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. ڈیلی شام 6 بجے یعنی کہ بچے آتے ہیں اسی عبادت خانہ کے اندر, سری گوپ کے اندر, یعنی کہ ہم بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, جو یعنی کہ 3rd بیچ ہوگا ہمارا, جو بچوں کو ہم ٹرین کرنے لگے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا زوم پر بائبل کالج کا بھی سٹارٹ ہونے کو ہے. جو یہ بائبل کالج کرنا چاہتا ہے, 7 دن کا یہ بائبل کالج ہے, اس پہ آپ حصہ لے سکتے ہیں. 7 دن میں ایسا سرٹیفکیٹ آپ کو بھی دیا جائے گا. آج ہم کلام مقدس میں سے جس بات پر غور کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مسیح کا ایمان. آپ لوگ مختلف عبادت خانوں میں جا چکے ہیں, مختلف عبادت خانوں کی تعلیم پا چکے ہیں یا سن چکے ہیں. آپ کی ایج بتاتی ہے کہ آپ میچور لوگ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں مجھے بتائیں, یا ایک سوال ہے کہ ایک مسیح کا ایمان کیا ہے. یاد رکھیں یہ میرا پہلا یہ جو سیشن ہوتا ہے بچوں میں, یہ وہ ہے پہلی یعنی کہ بیس ہے. یہ بچوں کی بیس رکھنے کے لیے میں سکھاتا ہوں. سب سے یعنی کہ جو پہلا ٹاپک جو ہوتا ہے میرا یہی ہوتا ہے. ایک مسیح, آپ اگر مسیح ہیں, آپ کسی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, تو آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں, اپنے ایمان کے بارے میں پتہ ہونا لازم ہے. تو بتایا جائے کہ آپ کا ایک مسیح کا ایمان کیا ہے. آپ لوگ سب لوگ مسیح ہیں, تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ شاباش شاباش. یسوع کا پیدا ہونا, یسوع کا صلیب پر قربان ہونا, صلیب کے بعد قبر میں ڈالا گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور اب ہم اس امید میں ہیں کہ ایک دن یسوع واپس آئے گا. یہ ایک مسیح کا ایمان ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کا ایمان کیا ہے, آپ کا فیتھ کیا ہے, تو آپ نے ڈنکے کی چوٹ میں کہنا ہے کہ مسیح یسوع ہمارے لیے پیدا ہوا, ہمارے لیے ہوا, ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, جان دی, پھر یعنی کہ دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور اب ہمیں لینے ہیں. کتنی باتیں ہیں جی؟ آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ زندگی بھر یاد رہے. اگر آپ یہاں پر اپنا 2 گھنٹے آئے ہیں تو 2 گھنٹے کچھ سیکھ کے جائیں. جی بتایا جائے جی ایک مسیح کا ایمان کیا ہے, اشاروں سے بتائے تاکہ انہیں یاد رہے. پیدا ہوئے, صلیب پر قربان ہوئے, قبر میں ڈالے گئے, تیسرے دن جی اٹھے, لینے آئیں گے. شاباش. مسیح یسوع پیدا ہوئے ہیں, صلیب پر قربان ہوئے ہیں, قبر میں ڈالے گئے ہیں, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں, اب ہمیں وہ لینے آئیں گے. یہ ایک مسیح کا ایمان ہے. اور یاد رکھیں آپ کی چاروں انجیلیں مقدس اسی یعنی کہ باتوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. یسوع کا پیدا ہونے کا ذکر ہے, یسوع کے مرنے کا ذکر ہے, یسوع کے دفن ہونے کا ذکر ہے, یسوع کا تیسرے دن جی اٹھنے کا ذکر ہے, اور یسوع کے آنے کا ذکر ہے. ہاللیلویا. انجیل مقدس کی بنیاد ہی یہ ہے. اور یاد رکھیں شاگرد جب فقیوں فریسیوں کو سکھا رہے تھے, بتا رہے تھے لوگوں کو مسیح کے بارے میں, وہ ان کی بیس لائن یہی تھی, ان کا عقیدہ, ان کا ایمان یہی تھا. وشال بھائی تب تو انجیل مقدس نہیں تھی, یعنی کہ انجیل نہیں تھی, یہ لکھی گئی نہ خطوط لکھے گئے تھے. پھر بات یہ ہے کہ شاگرد مسیح یسوع کے بارے میں, اس کے پیدا ہونے کے بارے میں کہاں سے بتاتے تھے؟ ہم تو انجیل مقدس سے آپ کو بتا سکتے ہیں.
ہمارے پاس نیا عہد ہے، ان کے پاس کب نیا عہد نامہ لکھا ہی نہیں تھا، لکھت پہ نہیں تھا. تو سوال یہ ہے، وہ مسیح کے پیدا ہونے کے بارے میں، مرنے کے بارے میں، دفن ہونے کے بارے میں، تیسرے دن جی اٹھنے کے بارے میں، آنے کے بارے میں کہاں سے بتاتے تھے؟ شاباش، پرانے عہد نامے سے، جسے تنہا کہا جاتا ہے عبرانی میں. پرانے عہد نامے سے، نبیوں کے صحیفوں سے، تورات میں سے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تورات میں، زبور میں، نبیوں نے جتنی ہی باتیں لکھی، کس کی بابت لکھی؟ میری بابت لکھی. میری بابت موسیٰ نے لکھا ہے کہ پیدا ہوگا، میری بابت عیسائیہ نے لکھا ہے کہ یہ مرے گا، دفن ہوگا. میری بابت یونا سے ہمیں ملتا ہے کہ تیسرے دن جی اٹھے گا. اور میری ہی بابت لکھا ہے کہ وہ آئے گا. ہاللیلویا. یسوع یعنی کہ ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی اٹھ کر آ گیا تھا، نہیں، بلکہ اس کی بیس لائن تھی. موسیٰ یسوع کو جانتا تھا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب یسوع کو جانتے تھے. اس لیے یسوع نے دعویٰ کیا کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کے لیے بڑا ہی آرزومند تھا. اور کہتا ہے اس نے دیکھا، وہ میرے ساتھ کھایا، وہ بڑا خوش ہوا. اب ابراہیم اور یسوع کے درمیان ایک بڑی مدت کا گیپ ہے. اور یسوع کہتا ہے، یسوع 30 سال کا ہے، وہ ابراہیم کہاں 4400 سال پہلے، اس وقت میں کیا سے 2000 ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع کو نبیوں نے دیکھا، موسیٰ نے پہاڑ پر جس کے ساتھ کھایا، جس کے ساتھ رہا، جس کو دیکھا، وہ آپ کا یہی یسوع ہے. یہی یسوع ہے جو سب کو دکھائی دے رہا تھا. تو ہم کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالے جن کے پاس کلام مقدس ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اس کی 3 آیت. بیٹا ارنس صاحب کے لیے پڑھنے میں رہنمائی کرے گا، مگر آپ اس حوالے کو ذرا دیکھیے. آپ کا ہمارا عنوان کیا ہے جی؟ آپ کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ ذرا اونچی بولے، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج کا ٹاپک اور عنوان یہی ہے کہ ایک مسیح کا ایمان کیا ہے. جی پڑھیں، ذرا سنیے گا آپ دوست. پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی 3 آیت. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی. یہ پولس کہتا ہے چنانچہ میں نے تمہیں سب سے پہلے جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کی کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. کلام مقدس کے مطابق. اشار بھائی کلام مقدس یہ کون سی کلام مقدس؟ تورات، زبور، صحیفے، ان کی بابت کلام مقدس کے مطابق ہوا، یعنی کہ مرا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق، اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق کیا ہوا جی؟ جی اٹھا. ہاللیلویا. پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. آمین. تو یہاں پر پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ یسوع کلام مقدس کے مطابق ہوا ہے، مرا ہے، دفن ہوا ہے اور جی اٹھا ہے. یعنی کہ اگر وہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدا بھی ہوا ہے. اگر وہ دفن ہوا ہے تو وہ جی بھی اٹھا ہے. اگر وہ جی اٹھا ہے تو وہ آئے گا بھی. ہاللیلویا. اسی امید میں 21ویں صدی کی کلیسیا جی رہی ہے، اور اسی امید میں پہلی صدی کے لوگ جی رہے تھے کہ ایک دن یسوع ضرور آئے گا. کلام مقدس کے مطابق ہی اس کا، یعنی کہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا. وہ 30 سکوں میں بیچا جائے گا، کلام مقدس کے مطابق ہو رہا تھا. اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، کلام مقدس میں لکھا ہے. سب کچھ کلام مقدس میں اس کی بابت لکھا ہے. اب پیدائش کی کتاب متی 1 کا 21 پڑھے تو یسوع کے پیدا ہونے کا ذکر ہے. نئے نامے کے ریفرنس بتانے لگا. متی 1 کا 21 میں یسوع کے پیدا ہونے کا ذکر ہے کہ یسوع ایک شخص دنیا میں پیدا ہوا ہے، پھر وہ ہمارے
ये मत्ती 23:50 में लिखा है। फिर यीशु कब्र में डाला जाएगा, ये लूका 23 में लिखा है। फिर यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, ये मत्ती 28 में लिखा है। फिर यीशु आएगा, ये मरकस 13 में लिखा है। ये नए नामे के मैंने आपके सामने रेफरेंस रखे कि मत्ती 1:21 में यीशु पैदा हुआ है, मत्ती 27 में यीशु को सलीब दी गई है, मत्ती 23 में उसको कब्र में डाला गया है, मत्ती 28 में वो जी उठा है तीसरे दिन मुर्दों में से, और मरकस 13 के में वो बादलों के साथ दिखाई दिया है। क्योंकि यीशु ने दावा किया मरकस की इंजील उसके 13वें बाब में कि देखो मैं बादलों के साथ आऊंगा, तमाम फरिश्तेगार जमीन के कोनों से लोगों को जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे? क्योंकि हर एक घुटना, खाओ आसमानिया का हो, खाओ जमीनिया का हो, खाओ जमीन के नीचे रहने वाले का हो, हर एक घुटना यीशु नाम क्या कर चुकेगा, वो इकरार करेगा कि यीशु खुदा है। हालेलुया। एक दिन हर एक जान जो नास्तिक है, जो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, एक दिन वो छाती पीटेंगे जब यीशु बादलों के साथ आएगा। उस वक्त उनको बड़ा ही अफसोस होगा कि हम तो टीवी में सुनते थे, हम तो पास्टर से सुनते थे, हम तो ये क्रिश्चियन लोगों से सुनते थे कि यीशु आने वाला है, मगर हम लोगों ने कबूल ना किया। मगर जब यीशु अपने लाखों लाख फरिश्तों के साथ आएगा, तब तौबा का मौका ना होगा। वक्त जब तक आप जिंदा है तो तब तक तौबा का मौका है, उस वक्त तक की अदालत लगेगी और यीशु इंसाफ के लिए सबको बुलाएगा, तब इंसाफ होगा। अब यीशु मरने के लिए नहीं आएगा, कुर्बान होने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि नजात का बंदोबस्त उसने तमाम दुनिया के लिए कर लिया है। अब वो अदालत के लिए आएगा। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु यानी कि पैदा हुआ है, यीशु हुआ है, यीशु दफन हुआ है, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो यीशु आएगा। तो ये नए नामे के कुछ मैंने रेफरेंस आपके सामने रखे कि नए नामे में भी हमें मिलता है यीशु पैदा हुआ है, यीशु को सलीब दी गई है, यीशु को कब्र में डाला गया है, यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से यानी कि यीशु जी उठा है और यीशु आने वाला है। अब हम देखने लगे हैं पुराने नामे से, और इस पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि हमें अक्सर इबादत खानों के अंदर नए नामा के बारे में ज्यादा सिखाया जाता है, पुराने नामे की तरफ कम लेकर जाया जाता है। और आपको मैं मसीह के पैदा होने का, मसीह के मरने का, मसीह के दफन होने का, मसीह के जी उठने का, मसीह के आने का पुराने नामे में से बताने लगा हूं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अंजील से तो हमारे जो गैर कौम भाई हैं इनकार कर सकते हैं, ये तो बदल गई, मगर तनाव जो मूसा की मार्फत है ये कैसे यानी कि बदल सकती है? आप कहते हैं कि इंजील मुकद्दस यानी कि बदल गए, इसका मरने का, जी उठने का जिक्र ही नहीं, वो मरा ही नहीं। तो नबियों ने भी लिखा है, कई हजार साल पहले ये बातें लिखी गई, और आज भी ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास उर्दू जुबान में है, इब्रानी में भी यही सब कुछ लिखा है। और कई रवाइस आज पढ़ पढ़कर मसीह का कबूल कर रहे हैं। कई गैर कौम के लोग आज सीसी को पढ़ पढ़कर यानी कि मसीह हो रहे हैं, मसीह के ऊपर ईमान ला रहे हैं, क्योंकि मूसा भी इसी मसीह का मुंतजर था, इब्राहिम, इसहाक, याकूब इसी मसीह का मुंतजर था, नूह इसी मसीह का मुंतजर था। जितने नबी अंबिया आए सब इसी
ईसी मसीह की बाबत बोलते रहे, प्रीच करते रहे, सिखाते रहे, बताते रहे। तो मेरे साथ जरा पुराने नामे में जरा आए। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत, यीशु के पैदा होने का जिक्र। कदीम ज़बान ने पहले मूसा ने एक किताब लिखी जिसे तखलीक कहा जाता है, पैदाइश की किताब कहा जाता है, इब्रानी में इसे बराशीत कहा जाता है। उस किताब में मूसा ने कुछ लिखा मसीह की पैदाइश के बारे में। पढ़े जरा भी। और मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा और तेरे सर को कुचलेगा और तेरी एड़ी को काटेगा। यहाँ पर एक प्रोफेसी बताई गई कि औरत की नस्ल से एक शख्स पैदा होगा, वो सांप के सिर को क्या करेगा जी? और औरत की नस्ल से पैदा होने वाला कौन है? हालेलुया। मसीह यीशु वही शख्स है जिसकी बाबत पैदाइश की किताब में मूसा ने लिखा कि औरत की नस्ल से एक शख्स पैदा होगा और वो सांप के सिर को कुचल डालेगा। सांप के सिर को यीशु ने कब कुचला? कोई बता सकता है? सांप के सिर को यीशु ने कब कुचला? जब शैतान आजमाइश कर रहा था। नहीं नहीं, कब कुचला सांप के सिर को? मेरे साथ रहिएगा जी बच्चों, दिमाग चला। सोचिए, यीशु ने कहा कि मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा। अगर यीशु ना जी उठता तो सांप जीत जाता। और शागिर्द यीशु जब जी उठा तो उसने सांप के सिर को कुचल डाला कि देख मैं हूं जिसने मौत में फतह पाई है। हालेलुया। ये सांप वो था जिसने आदम को भी मौत में सुला दिया। ये सांप वो था, इब्राहिम, इसहाक, याकूब जितने भी नबी है सब कब्र में है, और एक ही नबी, एक ही खुदावन, एक ही प्रभु जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया। जब वो जी उठा तो उसने सांप के सिर को कुचल दिया, देख मेरी कब्र खाली है। जब यीशु जी उठा तो यीशु पे जितने लोग आज ईमान लाते हैं उनकी कब्र भी आज ही से बल्कि अभी से ही खाली हो चुकी है, क्योंकि एक दिन यीशु अपने भेड़ों को आवाज देगा और उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनेंगी, और जब सुनेंगे वो जी उठेंगे, वो उसके साथ रहेंगे फरदौस में। तो सिर को कुचलने वाला शख्स एक ही है शैतान के। कौन है वो? मसीह यीशु। आपका और मेरा यीशु जी उठा है और उसने सांप के सिर को कुचला है। बहुत से रेफरेंस है, मगर मैं एक रेफरेंस आपके सामने रखता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत टाइम जाएगा। अगर कोई इसकी पिक्चर लेना चाहे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो ग्रुप में ऐड है, MMB पाकिस्तान ग्रुप में जो ऐड है उनको ये पिक्चर मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि यीशु की सलीब, यीशु यानी कि मौत, पुराने नामे में से हमें बहुत जल्दी होती है नए नामे में से, मगर मैं चाहता हूं कि आप पहले बेस लाइन पढ़ें, शरीयत का पढ़ें। जो उस्ताद है पहले उस्ताद को जाने। ईसाया 53 का 8 यीशु के मुँह जाने का जिक्र है, यीशु के मरने का। ये एक नबी हुआ है जी, कई हजार साल पहले एक नबी आया यीशु मसीह से, कई हजार साल पहले एक नबी आया और नबी ने यीशु के हक में क्या लिखा है? हाँ जी। वो जुल्म करके फितवा लगाकर उसे ले गए। जुल्म, वो जुल्म करके और फितवा लगाकर फतवा लगाकर उसे ले गए। पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदगी ज़मीन से काट डाला गया। आजा बच्चा, आप आ जाओ। आप ये मैसेज जिंदगी भर याद रखें। पहले तो एक शख्स दिखाया गया जिसने सांप के सिर को कुचला, अब मसीह मुआ है जी। जरा दोबारा जोर के साथ आए। और जुल्म करके और फितवा लगाकर, जुल्म करके, ईसाया कहता है जुल्म कर फतवे लगाकर उसे ले गए। किसे ले गए? अंजील मुकद्दस में नजर आता है इस पे झूठे इल्जाम लगाए गए, फतवे जारी किए गए और इसे मार कूट कर ले गए। आगे। पर उसके ज़माना के लोगों में से, उसके ज़माना के लोगों में, यीशु के ज़माना के लोगों ने किसने ख्याल किया
कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। उस वक्त मसीह पर कोई रहम नहीं किया गया। शरीयत की किताब में लिखा है कि 40 से ज्यादा कोड़े ना लगाना, मगर यीशु के वक्त कहा जाता है कि 40 कोड़े लगाए गए। मगर जिस वक्त मसीह यीशु को कोड़े लगाए जा रहे थे, उस वक्त कोड़ों की कोई गिनती नहीं थी, कोई यानी कि काउंटिंग नहीं थी। बेपनाह कोड़े लगाए गए, इतने कोड़े लगाए गए कि कोई यानी कि जो सिपाही गिनता था कोड़े को, वो भी गिन नहीं था। इतनी इस शख्स से कीना रखी गई, इसे अपने लोगों ने इससे कीना रखी। उस वक्त के रोमी भी इसे सताते रहे, मारते रहे। जिंदों की जमीन से ये शख्स काट डाला गया, फतवे, झूठे फतवे इस पर लगाए गए। ये है वो मसीह जो हम सब की बहाली के लिए, हम सब की जिंदगी के लिए, हमें बहाल करने के लिए इसने दुख सहे, इसने कांटों का ताज पहना, इसने थप्पड़ खाए। हालांकि आसमान पर फरिश्ते इस पर नजर नहीं कर सकते। यह आसमान और जमीन का खालिक है, ये मालिक है। इसी ने इब्तिदा में जमीन की नींव रखी, मगर जब इंसान बनकर आया, जब जिस्म लेकर आया, किसके लिए? इंसान के लिए। तब ये यानी कि बेबस रहा, जिंदों की जमीन से काट डाला गया, झूठे फतवे जारी किए गए। किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए ये सब इस शख्स के साथ हुआ है। तो हमने मसीह के पैदाइश भी देख ली, एक शख्स कवारी से पैदा होगा, वो मसीह की मसलूबियात भी देखेंगे, काटा जाएगा, काट डाला जाएगा, यानी कि मसलूब होगा, मुआ जाएगा। अब हम देखेंगे कब्र में डाल देने का जिक्र कहां पर हमें मिलता है। ईसाया 53 के 9 पढ़ लो, बहुत से रेफरेंस है, बहुत इजी रेफरेंस पढ़ते हैं। 53 का 9। उसकी कब्र में शरीरों के दरमियान चढ़ाई गई। उसकी कब्र, किसकी कब्र? किसकी कब्र? जिस पर फतवे दिए गए, जिसको मारा गया, जिसको जमीन से काट डाला गया, उसकी कब्र, उसे कब्र में दफनाया गया। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ईसाया ने लिखा है, नबियों ने लिखा है कि यीशु पैदा हुआ है, यीशु हुआ है, और यीशु की कब्र में डाला गया है। ऐसे ज़बूर 16 का 10 में लिखा है, और यूना 2 का 5 में लिखा है। यूना की जिंदगी से भी हमें नजर आता है कि जैसे यूना मछली के पेट से बाहर आया, यीशु कहता है कि जैसे यूना 3 रात मछली के पेट में रहा, ऐसे इब्ने आदम कब्र में रहेगा। यीशु ने खुद कहा कि मैं कब्र में रहूंगा, कब्र में जाऊंगा। तो ये तीसरी बात थी। पांचवी बात, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह कहां पर हमें मिलता है? ईसाया 53 के 10 पढ़। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजारी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी, वो खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीले। उसकी उम्र दराज होगी, वो अपनी नस्ल को देखेगा। कब? मरा हुआ आदमी नहीं देख सकता, जिंदा हुआ आदमी देख सकता है। उसकी उम्र को दराज किया गया, उसे फिर बहाल किया गया, वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। पैदाइश 21 का 12 पढ़े जरा। पैदाइश 1 का 12, पैदाइश 1 का 12। विशाल भाई, इस हवाले के अंदर अगर कोई मुझे मसीह के जी उठने के बारे में बताए, तो उसे आज की नाश्ता जो मेरे साथ करेगा, इस हवाले के अंदर। यदि आप चुप रहे, ये है रेफरेंस। छोटी छोटी बातों के अंदर मसीह यीशु छुपा हुआ है, बस हमें नजर आना चाहिए, उसको पिक करने की यानी कि सलाहियत होनी चाहिए। पैदाइश 1 का 11 जरा पढ़े। और खुदा ने कहा कि जमीन गाड़। ये पहला बाब है, वो पहले बाब के अंदर मसीह के जी उठने का जिक्र आया है, जहाँ पर पहले दिन रोशनी, दूसरे दिन फिजा, तीसरे दिन ये दरख्त और दरख्त बनाए जा रहे हैं। और खुदा ने कहा कि जमीन गाछ और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपने अपने जिन्स के मुआफिक फैले, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे, उगाए, और ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन दरख्तों को बनाया गया है,
और इसका कनेक्शन मसीह यीशु के जी उठने से है। तीसरे दिन याद रखें, पहले दिन रोशनी का बनाया जाने का कोई पर्पस है, दूसरे दिन फिजा को बनाया जाने का कोई पर्पस है, तीसरे दिन यानी कि दरख्तों का बनाया जाना कोई पर्पस है, चौथे दिन सूरज चांद सितारे बनाए गए कोई पर्पस है, पांचवें दिन मछलियों का बनाया कोई पर्पस है, छठे दिन आदम का बनाया कोई पर्पस है, सातवें दिन शबात को बनाया कोई पर्पस है। तो तीसरे दिन का पर्पस क्या था? ये तीसरा दिन चौथा भी हो सकता था, चौथे दिन दरख्त बन सकते थे, मगर तीसरे दिन दरख्त क्यों बनाए गए? हाँ जी, सोचिए, इसका ताल्लुक मसीह के जी उठने से। शाबाश बेटी, शगाइना के लिए जोरदार तालियां। मैं समझाता हूं तीसरे दिन दरख्त कहां से निकल रहे हैं? जमीन में से। यीशु ने अपने आप को दरख्त कहा है, अंगूर का मैं हूं, दरख्त कहा है और तुम मेरी शाखें। तो जब तीसरे दिन दरख्त जमीन से निकल रहा था, कि यीशु ने खुद भी कहा कि मैं एक दरख्त हूं, जैसे तीसरे दिन दरख्त जमीन से निकल रहा है, ऐसे ही जिंदगी का दरख्त तीसरे दिन जमीन में से निकला है। हालेलुया। तो ये है पैदाइश की किताब का यीशु जी उठेगा। मेरे साथ एक रेफरेंस और देख रहे हैं, ये जी उठने का ज़बूर 16 का 10, ज़बूर 16 का 10। क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। अब बुजुर्ग दाऊद रूह की हदायत से अपने बारे में नहीं कह रहे, क्योंकि दाऊद की कब्र आज भी मौजूद है। दाऊद का जिस्म सड़ गल गया है, मगर एक शख्स के बारे में रूह की हदायत से बुजुर्ग दाऊद कुछ लिख रहे हैं। जरा पंच के साथ आइएगा जरा। क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। ना मेरी जान कब्र में रहेगी, ना ये उसका जिस्म सड़ेगा। ये किसकी बाबत कहा गया? मसीह यीशु के बाबत। हालेलुया। मसीह यीशु जी उठा है। ज़बूर ने कहा, नबियों ने कहा, मूसा ने कहा, अंबिया ने कहा, जितने भी नबी आए सब ने कहा कि मसीह पैदा हुआ है, मसीह हुआ है, मसीह दफन हुआ है, मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और अब हम देखने लगे हैं मसीह आने वाला है। और ये भी पुराने नामे से बताऊंगा। दानियल की किताब, दानियल एक बड़ा नबी हुआ है जिसने आने वाले वक्तों के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसने हैकल का जिक्र किया है, इसने हैकल में जो मकरूह चीज बैठेगी उसका जिक्र किया है, इसने यहूदियों के मसाया जो आने वाला है उसका जिक्र किया है। जो मसाया आने वाला है, जो यहूदियों का बादशाह आने वाला है, जो होशवा है नासरी भी वलख यहूदी, यानी कि यहूदियों का बादशाह जो यीशु मसीह आने वाला है, उसका जिक्र किया है। दानियल 7 बाब 13 का 14। मैंने रात को रोया में देखा। मैंने रात में रोया में देखा। कुछ ख्वाब में नबी देख रहा है, और क्या देखा है जरा सुनिएगा। और क्या देखता हूँ? क्या देखता है? एक शख्स आदमजात था आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अलियाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और अशफाक और मुमतलक उसे दे गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अपनी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममतलक लाजवाल है। हालेलुया। नबी रोया में देख रहा है, एक शख्स बादलों के साथ आ रहा है, उसके आगे अहले जुबान अहले लोग जमा किए गए हैं, ताकि क्या करे, लोगों का इंसाफ करे। इसीलिए नए नामे में लिखा, हर एक घुटना खावा आसमानियों का हो, खावा जमीनियों का हो, खावा जमीन के नीचे रहने वालों का हो, हर एक घुटना यीशु नासरी के आगे झुकेगा। क्योंकि नबी ने रोया में देखा कि एक शख्स इंसान नुमा सा नजर आया। और याद रखे, यही शख्स इंसान नुमा मुकाशवा में
यूहन्ना कहता है कि मैंने एक शख्स इंसान नुमा देखा है। और आपको पता है जो ये इंसान नुमा शख्स नजर आ रहा है, मरकज के जो मैंने बताया, मरकज के इंजील 13वें बाब में यीशु ने ये दावा किया है कि जो नबी ने देखा, दानियल ने देखा, बादलों के साथ, फरिश्तों के साथ एक शख्स आ रहा है, वो इंसान नुमा शख्स, वो आदमजात मैं हूं। आने वाला आदमजात नबी देख रहे हैं तो इसे रोया में। ऐसे ही दानियल 10 का 15 पढ़े या 11 पढ़े, उसमें आपको ये बात मिल जाएगी कि एक शख्स इंसान नुमा आ रहा है। आज इस मैसेज के वसीला से बताने का मेरा मकसद ये है कि यीशु पैदा हुआ है। इस बात पर आप पुख्ता ईमान रखें और लोगों को बताएं कि यीशु पैदा हुआ है। यीशु तमाम दुनिया, तमाम कायनात के लिए हुआ है। यीशु दफन हुआ है। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और यही यीशु है जो आएगा और डंके के चोट पर अभी आएगा। लिखा है कि इसका छाज इसके हाथों में है और इसकी आंखें सोना की मानी दिखाई दी यूहन्ना को, गुस्से में दिखाई दिया ये यीशु, क्योंकि जज, अदालत करने वाला शख्स ऐसे अदालत नहीं करेगा मासूमियत के साथ, बल्कि गुस्से में, बड़े यानी कि तैश में ये अदालत होने वाली है। ये अदालत होने वाली है। हमें अपनी जिंदगियों को परखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालत के रोज यीशु के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जमीन में हसरत पाई जाती है किसी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिल से चोर हैं, हम खुद को फरेब दे रहे हैं, हम यानी कि दुनियादारी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हम ऐप जो ही कर रहे हैं, हम दूसरे से नफरत कर रहे हैं, हम गाली के बदले गाली दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी में तमाम बातें पाई जा रही हैं और जब यीशु आए तो कहे कि ऐ बदकिरदारों, मेरे सामने से निकल जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो आज हमने कलामे खुदा में से कोई बताए हमने क्या सीखा है? जी आप बताओ, शारे से कौन बताएगा? बेटा नेमिया आप सही बताओगे। तो एक बार आपको आखिरी बार डेमो करके बताने लगा हूं कि आज हमने क्या सीखा है। आज का ईमान क्या था हमारा? एक मसीह का ईमान, और हमारा ईमान 5 बातें थी, 5 पॉइंट हैं जो आपने याद रखे हैं। जी बेटा नेमिया आप चलो इशारे से बताओ। मसीह यीशु पैदा हुए हैं, यीशु कब्र में डाले गए, शरीर पर कुर्बान हुए, कब्र में डाले गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अब हमें लेने आए। हालेलुया। आप अपने मैं बता, मसीह यीशु पैदा हुए हैं, सलीब पर उन्होंने जान दी है, और जब जान दी है तो जाहिर है उनको कब्र में भी डाला गया, क्योंकि मर गया था, मर गया, कब्र में डाला गया। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन वो जी उठा है, और अब मसीही लोग मुंतजर हैं कि एक दिन यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हाथ लहरा कर हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे पीछे दुआए, यीशु पैदा हुआ, यीशु हुआ, यीशु दफन हुआ, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब हमें लेने आएगा। हालेलुया। खुदा बाप और बेटे खुदा रूह के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। अब हम आखिरी दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें और लबों को खोलें, अपने लिए दुआ करें, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें, अपने घराने के लिए दुआ करें, इस लियारी के रहने वाले लोगों के लिए
दुआ करे, मीर खान कौम के लिए दुआ करे कि खुदावन ऐसे जगह पर बरदारी लाए और नौजवान कसरत से इस्तेमाल हो, नौजवान कई जी उठे। हालेलुया हालेलुया। दुआ करें, सब आंखें बंद हो जाए। दुआ करें, दुआ करें, सब दुआ करें, दुआ करना शुरू करें। कोई भी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब दुआ करें। सब आंखें बंद हो अब जिसकी आंख मैंने खुली देखी वो डायरेक्ट बाहर जाएगा। कदूस कदूस हालेलुया। सब अपने लोगों को खोले, सब अपने लोगों को खोले, उसी आवाज में दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। हमारे एक बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं जिनको कमजोरी है, जिनके मसल वीकनेस है, उसके लिए दुआ करें कि खुदावन उसे बहाल करे, खुदावन उसे कमजोर जिसे लो दुआ करे। हालेलुया हालेलुया। उनकी जो भी बीमारी है खुदावंद तो उनसे बेहतर जानता है खुदावंद। ऐ खुदावंद तो इस बीमारी को दूर करना है खुदावंद। ऐ खुदावंद इन सब जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं खुदावंद उन सबका जो भी मसला मसाइल है खुदावंद तो हमसे बेहतर जानता है खुदावंद। तो ये इस मसले को दूर करने की कुदरत रखता है खुदावंद। तो ये है जो ऐसा करने की कुदरत रखता है खुदावंद। तो क्या ही दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं खुदावंद। तो क्या ही सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। अपने लोगों को खोले, बुलंद आवाज से दुआ करें। अगर ते कलाम को पढ़े सब से उस पर अमल लाने वाले हो सके खुदावंद। ऐ खुदावंद में दाऊद जैसा अंदर बैठो, दुआ करें, माइक पे। ऐ खुदावंद में दाऊद जैसा जोर बख्शे खुदावंद। दाऊद तो लाखों को तलवार से मारता था पर अब रूह के हथियार से लोगों की बुरी ख्वाहिशों को मारने वाले हो सके खुदावंद। ऐ खुदावंद हमारा ईमान है खुदावंद सदरक में सकदर दिल वजूद की तरह बना है खुदावंद ताकि हम किसी माबूद के आगे झुकने वाले ना हो सके खुदावंद। सजदा करने वाले हो सके खुदावंद। ऐ खुदावंद हमें एलिया जैसा बना है खुदावंद। एलिया तो आसमान पर उठाया गया
شکر آسمانی جتنی بھی دعائیں مانگی آپ کے بیٹے جس داخل کے نام سے قبول کیا آپ نے آپ کا شکر آمین اس نے ہمیں سکھایا ہمارے پاس جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہے تیری بات صحیح ہے تیری بات جیسے آسمان پر بڑی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے دوست نے پیار ہے جس سے ہم نے نام معاف کرتا ہے ہمارے قدر معاف کر ہمیں سماج کر ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بات سے قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین محبت و شراکت اب آسمانی چھوٹے گلہ کے ساتھ ہمیشہ تک بنی رہے خاص طور پہ شہر یروشلم کے ساتھ اپنے لباس پر ہمیشہ تک آمین آمین عبادت ہو چکی ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ